हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस 24/7। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक अपडेट आई है आप सभी के लिए। ऑल इंडिया बैंक स्ट्राइक जो 19 नवंबर 2022 को प्रपोज्ड है बैंक यूनियन की तरफ से, उससे रिलेटेड एक अपडेट आई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं आज के अपडेट की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है कि बैंक यूनियंस ने 19 नवंबर 2022 को ऑल इंडिया स्ट्राइक का कॉल किया है अपने कुछ मांगों को लेकर, जो है ट्रेड यूनियन के राइट्स, जॉब सिक्योरिटी, न्यू जॉब्स, बाइपार्टाइट सेटलमेंट और आईडी एक्ट का वॉयलेशन, एम्प्लॉयज़ का हैरेसमेंट ट्रांसफ़र करके, विक्टिमाइजेशन, क्लियरनेस रिगार्डिंग बाइपार्टाइट सेटलमेंट, सीएसबी बैंक में वेज रिवीजन लागू न करने को लेकर। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूनियन ने इसके रिगार्डिंग एक सर्कुलर इशू किया है जो 5 नवंबर 2022 का है। सर्कुलर में लिखा है, कॉल फॉर स्ट्राइक ऑन 19 नवंबर 2022, डिस्कशन विद आईबीए बैंक्स ऑन आवर स्ट्राइक नोटिस, फर्दर टू आवर स्ट्राइक नोटिस ऑन द आईबीए एंड द बैंक्स, गिविंग द कॉल फॉर ऑल इंडिया स्ट्राइक इन ऑल द बैंक्स on 19 November 2022 and the countrywide preparation and mobilization by our unions to implement the strike call. Yesterday, the IBA invited for discussions on the strike issue in IBA office today, in which the management of the concerned 11 banks were also to participate. स्ट्राइक नोटिस को ध्यान में रखते हुए IBA ने यूनियन को डिस्कशन के लिए 5 नवंबर 2022 को बुलाया IBA ऑफिस में, जिस मीटिंग में यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ कंसर्न जो 11 बैंक्स हैं उनके मैनेजमेंट को भी बुलाया गया। आगे लिखा है, अकॉर्डिंगली द मीटिंग वॉज हेल्ड इन IBA ऑफिस टुडे। बिसाइड्स द डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव एंड द सीनियर एडवाइजर IR and HR and the representatives of Bank of India, Central Bank of India, Canara Bank, Bank of Baroda, Bank of Maharashtra, CSB Bank, Sonali Bank, Federal Bank and IDBI Bank were present. Opening the discussion, IB informed that they have invited and the managements of the various banks involved in the strike notice with a view to enable proper understanding the issue involved from both sides and to enable the sorting out of the issue which will pave the way for industrial harmony and reconsideration of the strike. इस पैरा में कहा है कि रिस्पेक्टिव बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग में शामिल हुए और IBA ने इन्फॉर्म किया कि मीटिंग का आयोजन इशू को रिजॉल्व करने के लिए किया गया है। We reiterated our commitment to bipartisan and bilateralism because from 2 decades from 1946 to 1966 had to wage bitter struggles to move from tripartism to bipartisan and from tribunals to direct negotiations with the managements and IBA. We informed that we prefer to resolve all these issues through mutual and bilateral discussions, and that is why in the last 6 decades 11 BP settlements could be achieved at the industry level and many of the management's issues could also be amicably sorted out. इस पैरा में बताया गया है कि मीटिंग में यूनियन ने अपने स्ट्रगल को हाईलाइट किया और बताया कि वो इशू को रिजॉल्व करने की प्रायोरिटी देते हैं। इसी वजह से लास्ट 6 डेकेड्स में 11 BP सेटलमेंट के साथ कई मैनेजमेंट इशूज को भी रिजॉल्व किया गया है। We pointed out that while industrial conflicts and differences are bound to arise between managements and unions, there is always a scope to resolve the same through discussion and negotiations. We also informed the IBA and the participating managements that of late there is a noticeable tendency in some of the banks to violate the provisions of bipartite settlement and bank level settlements, particularly in areas like outsourcing and transferring the employees. We also pointed out that basic trade union rights are being questioned and right of representation is being denied. We also brought to the attention of IBA that some of managements do not care for the provisions of Industrial Disputes Act, particularly Section 33 of the ID Act, under which managements are to maintain status quo during conciliation, thus violating even the law of the land, which is an act of the Parliament. यूनियन रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी बात क्लियरली रखी है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को डिस्कशन और नेगोशिएशन के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। वहीं IBA को इन्फॉर्म किया गया कि कुछ बैंक्स में बाइपार्टाइट सेटलमेंट के प्रोविजंस को वायलेट किया है, पर्टिकुलरली आउटसोर्सिंग और ट्रांसफर के मैटर में। यह भी पॉइंट आउट किया गया है कि जो बेसिक ट्रेड यूनियन राइट हैं उन पर सवाल उठाया जा रहा है और राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन को डिनाई किया जा रहा है। मीटिंग में यह भी पॉइंट आउट किया गया है कि कुछ मैनेजमेंट
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पर्टिकुलरली सेक्शन 33 को नजरअंदाज कर रहे हैं। सर्कुलर में आगे लिखा है, देन वी स्टेटेड दैट व्हाइल वी अपहोल्ड द सैंक्टिटी ऑफ डिसिप्लिन ऑन द पार्ट ऑफ एवरी एम्प्लॉय, it is equally important that the management use the provisions of disciplinary action in a much judicious manner. We pointed out the instances of victimization and vindictive action taken in some of the banks, which is one of the reasons for the strike. We also brought to their attention the issue relating to attack the job security in Citibank and MUFG Bank. यहाँ पर बताया है कि जिस तरह से हर एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिसिप्लिन बनाकर रखे, उसी तरह मैनेजमेंट डिसिप्लिनरी एक्शन को जुडिशियस वे में ही डील करे। ऐसे कई इंस्टांसेस हुए हैं जहां विक्टिमाइज किया जा रहा है एम्प्लॉयज को, जो भी एक रीजन है स्ट्राइक कॉल करने के लिए। सिटी एंड MUFG बैंक में जॉब सिक्योरिटी इशू को भी हाईलाइट किया गया। वी अर्ज्ड अपॉन द मैनेजमेंट ऑफ CSB बैंक that they should set their adamant approach and come forward to work a mutually acceptable wage revision settlement, as employees and officers of this bank alone have been denied wage revision along with 11th BPS. While thanking the IBA for their initiative to convene the meeting, we informed that if the concerned bank management change their approach and come forward to resolve the issue bilaterally within the provision of the existing settlements, with the understanding that any change in these settlements may be pursued with the unions either by bank level or industry level, then would be able to reconsider the strike call. CSB बैंक से यह रिक्वेस्ट भी की गई कि वेज सेटलमेंट को लागू करें। ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज के लिए मीटिंग कॉल करने के लिए यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स ने IBA का धन्यवाद किया। साथ ही कहा कि अगर बैंक मैनेजमेंट मैटर जो हाईलाइट किए गए हैं उनको रिजॉल्व करना चाहता है तो स्ट्राइक कॉल पर विचार किया जाएगा। सर्कुलर के एंड में लिखा है, देयर आफ्टर वन बाय वन ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द वेरियस बैंक मैनेजमेंट्स made their points explaining their respective position of the management. IBA appealed to both and bank management to further discuss the issue at their level and try to sort out the same so that the strike can be averted. Since there was no concrete discussion or proposal from any of the managements to address the issue raised by us, we could not agree to reconsider our strike call. One by one बैंक representatives ने अपनी बात मीटिंग में रखी। वहीं IBA ने अपील की कि यूनियंस और मैनेजमेंट जो भी इश्यूज हैं उसे डिस्कस करें और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, जिससे स्ट्राइक कॉल वापस लिया जा सके। मैनेजमेंट से कोई भी कॉन्क्रीट अश्योरेंस ना मिलने पर यूनियन ने अब स्ट्राइक को डेफर करने का निर्णय नहीं लिया है। तो यूनियन ने अपनी मांगे ओपनली IBA एंड मैनेजमेंट के सामने जरूर रखी है कि बैंकिंग सेक्टर में पैरिटी रखी जाए, साथ ही वे सेटलमेंट और अदर इशूज जल्द से जल्द मैनेजमेंट रिजॉल्व करे। मीटिंग के आउटकम से यही पता चलता है कि यूनियन ने स्ट्राइक को डेफर नहीं किया है और मांगे न मानने पर 19 नवंबर 2022 को ऑल इंडिया स्ट्राइक का कॉल किया है। मैनेजमेंट इस मीटिंग के बाद डेफिनेटली कोई स्टेप जरूर लेगा। वी कैन होप कि डिसीजन बैंक एम्प्लॉयज के फेवर में आए। कंसर्न मैटर रिलेटेड कोई भी अपडेट आते ही मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सक्सेस 24/7। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।